So now understanding the concept of relationship with the help of an example. So like students information table. Now in students information table, like suppose your attendance there. Okay. So in your school attendance register, your name, roll number, phone number, parents' name, address, various fields are mentioned. So similarly here also, students information table, a table will be made in the database, and in that table, roll number is defined, then F name is first name, okay, then father's name, address, telephone number, and date of birth. Okay, various fields have been entered. Now, as you can see, like roll number is there, so it will be a number only. It cannot be a text. नंबर की जगह पे वहाँ अल्फाबेट नहीं आ सकता. लाइक किसी का रोल नंबर ABCD नहीं होता 1 2 3 4 बिकॉज इट इज अ नंबर. Then first name. So first name will be a text. It cannot be a like number. किसी का नाम 1 2 3 4 नहीं होता है ना? So now coming to like address. So in address, it will be a text. It will be consisting of both numbers as well as alphabet. So you can also say it alphanumeric. Okay. So the telephone number, obviously number. Now date of birth. So this is a special data type, that is date. Date एक अलग सा data type होता है, ठीक है? It's not a number. You cannot say it is a number. Like I'll show you. हम Excel paste. So I'll be entering a roll number. Suppose I've entered one, the name as A, then address as like 6 comma something something, and then phone number, then date. Now coming to date, if you see like if I just enter one, so this is a number, okay. But if I write like 1-1-20, so now it has automatically taken 0101 2020. It has automatically taken. And when we'll see, देखो जब मैं एक कॉलम पे हूँ, एक सेल पे हूँ, सॉरी, when I'm on a cell, if you see to this number format, so what it is saying, general. ठीक है, अभी general है. When I'm clicking on one, okay, till now all these are general, but as soon as I click on this date, you can see it is date specifically. ठीक है, ये डेट का एक अलग फॉर्मेट ही होता है. लाइक डेट हो गया, करेंसी हो गया. ठीक है, करेंसी में क्या होता है, लाइक आप 1 लाख सपोज आप लिख रहे हैं, तो वन के बाद एक कॉमा, फिर 2 जीरो, फिर एक कॉमा, फिर 3 जीरो. सो लाइक दिस, सो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट फॉर्मेट. Now, coming to, so the students information table consists of information about students. To enter the detail of the students, percentages, grade, you do not have to enter all the fields in a separate table. आपको ऐसा नहीं है कि सारी फील्ड, जैसे कबीर का एक टेबल में लिखा, फिर नई टेबल बनाई मानस के लिए, नया टेबल बनाया रिद्धिमा के लिए, नहीं. उसी के नीचे हम जस्ट एंट्री करते जा सकते हैं. Then you will take only a common field in the second table. By making a link to the common field, you can retrieve the desired set of records from both the tables. अब दो टेबल की बात हो रही कि सपोज एक ये वाली टेबल है, देन एक और टेबल है. अब मैं आपको एक्सेल पे ही एक रिलेशनशिप दिखाता हूँ. आई एम नॉट गोइंग ऑन डेटाबेस, दैट इज लाइक एक्सेस और बेस. मैं एक सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर एक्सेल पे ही इसको आपको दिखा रहा हूँ. Just wait. Like when your result is being generated, so how it is generated, I'll show you. Now you can see like this is the result of 9th day. Okay, so in one table, that is STUD, okay, in this sheet, admission number, name, and class and section of the student is mentioned. Okay, is it visible to you all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
Now you can see another Yes. sheet named that is PA1, Periodic Assessment 1. अब उसमें वही सारे बच्चे हैं, ठीक है, एंड उनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं उनकी एंट्री है, ठीक। बट व्हेन यू विल बी सीइंग, हम ये हाफ ईयरली का इसी तरीके से एंटर किया। नाउ एक जो रिजल्ट टेबल बनी, अब इस रिजल्ट टेबल में पीए हिंदी, हाफ ईयरली हिंदी, देखिए दोनों के मार्क्स है, पीए इंग्लिश, हाफ ईयरली इंग्लिश। दैट मीन्स अब जैसे पीए वन के अगर हम हिंदी में जाएं, यू कैन सी लाइक आस्था इज 9.9, और हाफ ईयरली में हम जाएं तो इट इज 76। सो यू कैन सी यहाँ पे 9.9 और 76 ऑटोमेटिकली आ चुका है दूसरी टेबल से। तो ये कैसे लिंक हुआ? यू कैन सी वी हैव प्रोवाइडेड अ रेफरेंस, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, दैट इज PA1 का, PA1 जो हमारी शीट है, वर्कशीट, उसका जो C2 सेल है, मीन्स सी आपका कॉलम हो गया और टू हमारा रो हो गया। तो जो C2 हमारा सेल है वो वाला डेटा यहाँ पे आ जाए। तो लेट्स चेक आउट कि PA1 के C2 में क्या है। सो वी आर गोइंग टू PA1 एंड वी आर सीइंग C2, ठीक है, ये देखिए ये C2 है और PA1 के C2 में हमारा डेटा है 9.9। तो ये एक रेफरेंस के तौर पे दूसरी टेबल से, दिस इज अ डिफरेंट टेबल, ये पीरियोडिक असेसमेंट वन की ये दूसरी टेबल है, हाफ ईयरली की दूसरी टेबल है, एंड रिजल्ट की एक अलग टेबल। तो हमने हर टेबल को उसमें से डेटा निकाल के एक जगह पे लाया। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, बाय मेकिंग अ लिंक इन दिस कॉमन फील्ड you can retrieve the desired set of records from both the tables, आपको जहां से भी रिकॉर्ड चाहिए। सो सपोज जैसे कि आपने एक टेबल बनाई, एक स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन टेबल, तो दूसरी आपने मार्क्स की टेबल बनाई। नाउ मार्क्स की टेबल में आपने सिर्फ रोल नंबर असाइन किया। अब वहां पे आपको नाम असाइन करने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर आपको नाम चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल से। तो इन दोनों के बीच में लिंकिंग करानी होती है, ठीक है। So now marks table. So notice that the values of the roll number, that is the fields in the marks table, are same as the values in the students information table. So you can define a relationship between both the tables using the common field, that is the roll number, क्योंकि रोल नंबर जो है वो यूनिक होगा। अब सपोज अगर हम ये नाम से करते एंड कुछ सिमिलर नाम होते, लाइक सपोज आस्था त्रिपाठी, अब तीन चार आस्था त्रिपाठी हैं क्लास में, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक फॉर विच आस्था त्रिपाठी वी आर लुकिंग फॉर। बट ये चीज अगर हमको क्लास में सेग्रीगेट करनी होती, तो हाउ डू वी सेग्रीगेट? बाय देयर रोल नंबर्स। लाइक सपोज प्रिंसिपल कम्स टू योर क्लास and says, Astha stand up. Now there are six Astha. All Astha will be standing up. And then when he says, no, Astha Tripathi, so remaining two will sit down and four are still remaining. Then he is having confusion how to specifically point out that Astha Tripathi, so he'll be calling out the roll number. तो इस तरीके से हम रोल नंबर कह सकते हैं दैट इट इज यूनिक। So roll number in this way in relational data base management system reduces the duplicity of data। duplicity of data को हम और क्या कहते हैं? What was the another name for it? redundancy. Correct। Redundancy. Coming to features of base, अब base के features क्या हैं? Let's open base। Okay, we had made one Rishikul। So this was database that we made last time, that was Rishikul। Then now features of base, so base provides the facility to break large information into small parts। कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा information है, बहुत बड़ा data set है, तो उसको छोटे छोटे parts में divide करना है। Then so that it is easy to access the information। Then data redundancy,
दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस। यहाँ पे देखिए टर्म आ गया रिडंडेंसी। then it increases the efficiency, speed and flexibility in searching and accessing information। कि हमें किसी का भी इंफॉर्मेशन अगर फेच करना है तो हम सिंपली, सपोज हमें रोल नंबर 15 का इंफॉर्मेशन फेच करना है, वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर रोल नंबर 15 एंड पूरा उसका डेटा हमारे सामने आ गया। Then base facilitates sharing of data, that is different users can use the same database to extract data according to their needs। अब like if you would see कि जैसे कि Gmail है, ठीक है, अब Gmail पे आपका मेल है तो कोई भी आप अगर मेल किसी से शेयर करना चाहते हैं, आप उसकी ईमेल आईडी डालते हैं, उसको वो मेल पहुंच जाता है। सपोज कि अब हम डेवलपर की बात करें, ठीक है, जिसने जीमेल को डेवलप किया होगा, वो अगर चाहे तो किसी का भी इनबॉक्स देख सकता है। ठीक है, तो हर अलग अलग लेवल पे शेयरिंग ऑफ डेटा है। अब जैसे यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स अपने अपने वीडियोस डालते हैं। नाउ देयर आर थ्री ऑप्शंस कि आप वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं कि सभी देख सकें, आप प्राइवेट करना चाहते हैं कि लिमिटेड लोग ही देख सकें, या जिन जिन को लिंक शेयर हुई है या जिनको ईमेल एड्रेस मिले हुए हैं सिर्फ उन्हें वो वही उसको एक्सेस कर पाए। एंड अनदर वन इज कि नॉट लिस्टेड, कि मतलब आप चाहते ही नहीं कि कोई देख पाए। तो इस तरीके से आप सेग्रीगेशन कर सकते हैं कौन आपके उस पर्टिकुलर डेटा सेट को व्यू कर सकता है, कितने लोगों के पास उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो सकता है या कितना एक्सेस हो सकता है। सपोज आप चाहते हैं कि अब जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल है, आप चाहते हैं एक जो मॉडरेटर हो उसको सिर्फ फर्स्ट नेम और फादर्स नेम दिखे, टेलीफोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ना दिखे, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो इन दिस मैनर यू कैन शेयर योर डेटा टू वेरियस यूजर्स। Then base provides database data security features and maintains integrity, which is useful to make a data more consistent and reliable। तो मेंटेन्स इंटेग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, नाउ डेट ऑफ बर्थ है कि 31/2020, तो इज इट करेक्ट? मैं लिख के दिखाता हूँ। सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 31/31/2000, तो क्या ये सही है? No, sir. क्यों सही नहीं है? Sir, because there are only 12 months. करेक्ट, सो बिकॉज देर आर 12 मंथ्स। अब इस केस में दो हमें मतलब एक दुविधा हो रही है। क्या दुविधा हो रही है? लाइक ईदर दिस इज डे, या ये तो या ये डे है, एंड दिस इज फॉर श्योर ईयर, ठीक है, बट मंथ इज मिसिंग। और अगर हम कहें कि ये मंथ था, बिकॉज कुछ सिस्टम्स में ऐसा भी होता है कि पहले मंथ आता है, बीच में डे आता है एंड देन ईयर आता है। कुछ में क्या होता है लाइक MDY एंड देन कुछ जनरली हम जो कन्वेंशनली पढ़ते हैं वो होता है डे मंथ एंड ईयर। तो ये वाला फॉर्मेट तो बिल्कुल ही गलत है। सो दैट इज वाई इफ यू एंटर सच काइंड ऑफ अ डेटा इट विल ऑटोमेटिकली शो एरर कि इस टाइप का डेटा एंटर नहीं किया जा सकता। ये आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले से आपको प्रॉम्प्ट कर देगा। सो इन दिस मैनर आप इनकरेक्ट डेटा एंटर करने से बच जाएंगे, ठीक है। So that is what integrity means, कि which is useful to make your data more consistent and reliable, कि आपका डेटा और ज़्यादा consistent और reliable हो, ठीक है। बिकॉज बाय मिस्टेक एनीबडी कैन एंटर सच काइंड ऑफ अ थिंग। बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है, किसी से भी गलत टाइप हो सकता है, बट अगर गलत टाइप हो गया तो फिर तो वो एंट्री गलत हो जाएगी। सो दैट इज वाई इस तरीके की चीज को ये ध्यान में रखता है। देन बेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट data forms so that the users can enter required information in the respective fields। It also reduces data entry errors, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। Then queries help you to get information on a specific topic for the information stored in the database। तो क्वेरीज की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं या तो उसके अंदर फीड कर सकते हैं। तो ये भी अलग अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास।
Then next comes reports allow you to present the data in meaningful and summarized manner. और reports के थ्रू हम डेटा को या तो फेच कर सकते हैं या तो उनका सपोज हमें कोई ग्राफ या कुछ इस तरीके से बनाना है कि एनालिसिस करनी है हमें डेटा की, तो हम वो भी इजीली कर सकते हैं. Now, how to start LibreOffice base? So, it's very simple कि आप बस स्टार्ट मेन्यू में जाएं. इसको पहले ऑब्वियस सी बात है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा LibreOffice का पूरा सेटअप, एंड देन आफ्टर दैट यू जस्ट गो एंड सर्च फॉर बेस. ठीक है, तो LibreOffice बेस आपको मिल जाएगा. यू जस्ट क्लिक ऑन दैट आइकन एंड उसके बाद आप ओपन करेंगे. सो आई हैव टोल्ड यू दी मेथड बिफोर ओनली कि किस तरीके से ओपन करते हैं. मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ. So it has opened. Now it's saying कि ये आपका database wizard आ गया. On the next page, that is page number 29, कि the database wizard screen appears which displays the option create a new database. तो नया database आप create कर सकते हैं just by going on next. ठीक, एंड फिर उसके बाद आपको करना है कि नो डू नॉट रजिस्टर द डेटाबेस. मतलब अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है और आप चाहते हैं कि ये डेटाबेस ऑनलाइन रजिस्टर हो जाए, ठीक है, लाइबर ऑफिस के पास, अगर ये आपने रजिस्टर कर दिया तो इस नाम का दूसरा डेटाबेस नहीं बनाया जा सकता. जो भी लोग लाइबर ऑफिस का यूज कर रहे होंगे तो वो सिमिलर नेम का डेटाबेस नहीं बना सकते. ठीक है, तो दिस प्रिवेंट्स रिडंडेंसी कि एक ही नाम के कई डेटाबेसेस ना हो. तो इसलिए बिकॉज व्हेन वी आर मींस इन अ लर्निंग फेज तो हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे. बट व्हेन यू आर इन अ डेवलपमेंट फेज, जब आप कुछ बहुत बड़ी चीज डेवलप कर रहे हो कोई डेटाबेस, देन आप इसको अगर चाहते हैं तो यू कैन रजिस्टर इट. So now creating a new database, so it is saying to create a new database, click on create database, then data, then no, do not register database. Since we are in the learning phase, there is no need to register the database on the LibreOffice website. Then open the database for editing, और उसके बाद हम इसको चेक रखेंगे. And then create tables using the table wizard. So it allows us to create different tables by choosing them from a predefined list. It also provides a ready-made fields within each table. तो अगर आप इसको चाहते हैं कि ये शुरुआत से आए तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं. Then just click on finish. So it will be asking you the name of the database. Then on next page, that is page number 30. Good morning, sir. That is on page number 30. So it is saying table wizard. Now what you have to do, just simply give it a name like PR. Okay, good morning Shubham. वो आगे ऐसा फोटो कॉपी करना कि आगे पीछे हो, 3 कॉपी. डबल साइड, हाँ डबल साइड, 3 कॉपी, हाँ 3 कॉपी. हरी सर, ये एनकैश हो जाएगा अब. ये उसका था. अरे ये तो हो चुका है. एक और ये, हाँ एक पड़ा हुआ है मेरे पास 2 साल पहले का. खत्म. अच्छा. Okay, so now this is the table wizard. So as you can see कि हमको जिस भी टाइप की टेबल चाहिए, अब बिजनेस टाइप की चाहिए कि पर्सनल टाइप की चाहिए. सो आप पर्सनल में देखेंगे तो इट्स लाइक प्लांट्स, ऑथर्स, लाइब्रेरी, रेसिपीज, अकाउंट्स, तो इन्वेस्टमेंट्स. ठीक, अलग अलग तरह की. बिजनेस में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ऑर्डर्स का. नाउ लेट्स टेक ऑर्डर्स की सपोज आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो एक ऑर्डर्स की टेबल में क्या क्या फील्ड्स हो सकती हैं. तो कुछ प्री डिफाइंड इसमें रहते हैं, लाइक ऑर्डर आईडी एक होगी, लाइक शिप एंड सिटी कि आप किस सिटी में वो ऑर्डर प्लेस करवाना चाहते हैं. जैसे आप अमेजोन पे देखते होंगे कि उसमें आपका डिलीवरी एड्रेस पूछता है. ओके, सो लाइक विच सिटी विल बी देयर, देन शिपिंग का डेट क्या है, किस दिन शिप हो रहा है, शिपमेंट का नेम क्या है. ठीक है, देन ऑर्डर का डेट क्या है. अब शिपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, ऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग.
ऑर्डर जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया, दैट इज द ऑर्डर डेट। शिपमेंट डेट किस दिन जो आपका पर्टिकुलर ऑर्डर है वो उस पर्टिकुलर दुकान से या उस फैक्ट्री से वहां से निकला, दैट इज कॉल्ड शिपिंग डेट। देन कस्टमर की क्या आईडी है, एम्प्लॉय की क्या आईडी है, ठीक है। देन शिपमेंट का पूरा एड्रेस क्या है। देन सेल्स टैक्स का रेट क्या है, जो सपोज टैक्सेशन जो भी उस पे लगा, फ्राइट में चेंज जो है। देन प्रॉमिस बाय डेट, तो जो जो आपको फील्ड्स चाहिए, सपोज अब इतनी ढेर सारी एंट्रीज हैं, हमें इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है, हमें सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो कुछ चीज़ों में क्या कि एक ऑर्डर आईडी है, तो हमने इसको ये सेलेक्ट किया और ये वाले एरो बटन से इधर सिलेक्टेड फील्ड्स में प्लेस कर दिया। देन हमें ऑर्डर डेट चाहिए, ठीक, हमें शिपमेंट का डेट चाहिए। देन हमें कस्टमर आईडी चाहिए, ठीक है, और रिक्वायर्ड बाय डेट कि किस डेट तक पहुंच जाए हमारा शिपमेंट। देन फ़ोन नंबर शिपमेंट का, और इतने में हम करते हैं। सो एज यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। नाउ अब जब ये है, नाउ इट इज सेइंग सेट टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, ठीक है, सब चीज़ का आप टाइप और फॉर्मेट सेट करें। तो जो ऑर्डर आईडी है वो ऑब्वियस सी बात एक नंबर ही होगी, सो दैट इज वाई इट इज इंटीजर, ठीक है। और भी अलग अलग चीज़ें लाइक टेक्स्ट एंड ऑल, बट आईडीज जो होती हैं जनरली वो नंबर्स ही होती हैं। लाइक अगर आप आधार कार्ड की आईडी की बात करें, सो यू कैन से कि से क्या, वो तो होती ही नंबर है। सो वो नंबर होता है, तो इन सिमिलर मैनर ऑर्डर आईडी भी हमारा एक नंबर होगा, एंड दैट टू इंटीजर, ऐसा नंबर नहीं कि जिसमें डेसिमल्स हो, ठीक है। वी वांट स्पेसिफिक नंबर, so we have chosen it as integer। then order date, now you can see it is already date type, इसका टाइप date ही रहेगा, ठीक है, you cannot place it like decimal numeric और कुछ। शिपमेंट डेट, ये भी डेट है तो डेट का ही डेटा टाइप रहेगा। सो व्हाट स्पेसिफिकली अ डेटा टाइप इज, डेटा टाइप वो होता है जो आपके डेटा का टाइप डिफाइन करे, दैट इज अ डेटा टाइप। सो दीज आर वेरियस डेटा टाइप, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, याद करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप समझ गए सो इट्स वेरी इजी फॉर यू। लाइक टाइनी इंटीजर, ये छोटा सा इंटीजर है तो टाइनी आई एन टी। बिग आई एन टी अगर बहुत बड़ा इंटीजर है, ठीक है। देन इमेज, ठीक है, अगर आप कोई इमेज अपलोड करवा रहे हैं जैसे किसी की प्रोफाइल पिक्चर या समथिंग लाइक दैट, तो वो इमेज हो गया, तो क्या आएगा, लॉन्ग वेर बाइनरी। बिकॉज आपको ये चीज़ पता होगी कि जब कोई भी इमेज या वीडियो है वो जीरोज एंड वन के फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। लाइक आई विल शो यू। ठीक है, अब ये देखिए, ये बाइनरी इमेज का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। So now you can see a binary image is one that consists of pixel that can have one of exactly two colors, that is using black and white। अब पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया होगा, लाइक जैसे एम एस पेंट पे मैं सिंपली एक ए बनाता हूँ यूजिंग लाइंस, ठीक है। ये आप देखिएगा, या मैं टेक्स्ट में ही लिख देता हूँ, ठीक, ये लिखा मैंने, और इसको थोड़ा ऐसे फॉन्ट में कि पतला रहे तो इजी होगा। ठीक है, दिस इज द, अब ये मैं एकदम पिक्सल लेवल पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपने जब शुरुआत में ए देखा था टोटली ब्लैक दिख रहा था, अब आप देख सकते हैं इसमें थोड़े से कलर्स भी आ गए, ठीक। तो नाउ दिस इज वन पिक्सल। अब मैं ये जो एक छोटा सा स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये मैं देखिए अभी गायब कर दे रहा हूँ, ये गायब हुआ।
और फिर वापस ले आता हूँ। ये देखिए, ये एक पिक्सल है, ठीक है, ये मैंने 2 पिक्सेल्स हटाए, तो एक एक पिक्सल के अरेंजमेंट से वो पर्टिकुलर एक फिगर बना। यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे पिक्सेल्स क्या हैं, ऑफ हैं, हाँ, और यहाँ पे क्या है कि ऑन हो गए। तो इस कॉम्बिनेशन में जीरोज एंड वन के फॉर्म में, कि जहाँ पे वन है मतलब वहाँ पे पिक्सल ऑन है, जहाँ पे जीरो है मतलब वहाँ पे पिक्सल ऑफ है। तो इस कॉम्बिनेशन से हम एक इमेज को क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी इमेज। तो I'll show you one diagram। जैसे अ फोटोग्राफ ऑफ नेबरहुड वॉच, ठीक है, ये टोटली बाइटोनल है, और ये आप देखिए, ये बिल्कुल एकदम पिक्सल लेवल पे है, कि हमने जहाँ जहाँ पिक्सल ऑफ कर रखे हैं वो ब्लैक है, जहाँ ऑन कर दिया वो वाइट है, और उसी के ज़रिए हमने एक ये वार्निंग का साइन लिखा एंड ये पूरी की पूरी इमेज बनाई। सो अ इमेज दैट यू स्टोर is stored in the form of binary, so that is what it is saying। so and now that binary value will be very big, ठीक है, जैसे कि बाइनरी वन का बाइनरी आपको पता है क्या होता है? हम्म, नाउ दिस इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे वन का बाइनरी वन है, टू के लिए हम लिखेंगे 10, देन थ्री के लिए 11, फोर के लिए 100। अब आप सोचेंगे कि हम इसको याद कैसे करें, है ना? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक, सुना नंबर सिस्टम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको आप कैसे आपने याद किया था? एनीबडी? सर ये उसमें हाँ बेटा, चलो, नो इश्यूज। देखिए, Sorry, sir. हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाउ आई शो यू, बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। sir by changing a decimal number into a binary number. हाँ करेक्ट, आप वैसे चेंज कर रहे थे, बट एक बहुत इजी मेथड होता है। एक तो आप लोगों ने वो लॉन्ग मेथड पढ़ा होगा, डिवीजन, जिसमें आप करते थे, Yes, बाइनरी sir. है तो हम टू से Yes. डिवाइड करते थे, ठीक है। Yes, सपोज sir. द नंबर इज 10, ठीक है, हमें 10 का बाइनरी लिखना है, तो हम क्या कहेंगे, 2 5 ज़ 10, तो टोटली डिवाइड हो गया, तो हो क्या जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ 4, है ना, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 1 ज़ 2, तो रिमाइंडर कितना है, जीरो। और फिर हम यहाँ से इधर चले जाते हैं, तो इसका हो गया 10 10, ये बाइनरी हो गया 10 का। तो अगर हम 10 बाइनरी देखें, ये 10 10। तो एक तो ये मेथड था। अनदर मेथड इज देयर कि जिसमें मम्मी मैं एक मिनट में कपड़े पहन के आ रहा हूँ। ठंडी लग रही इसीलिए बस अभी खड़ा हुआ बस। ठीक है, तो दिस इज द मेथड कि आप ऐसे बाइनरी नंबर्स बना सकते हो। द अनदर मेथड इज, ये लीव इट, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ अ टोटल चार्ट। वो एक पूरा चार्ट बना के एंड उसमें लाइक नॉट ओनली बाइनरी, एक डिजिट का नहीं, अब जितना भी बड़ा से बड़ा डिजिट हो, कोई सा भी डिजिट, 100 200 1000, किसी का भी बाइनरी, तो एक इमेज का बाइनरी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ लॉन्ग वेर बाइनरी, ठीक है। देन आफ्टर दैट बाइनरी, फिर बाइनरी फिक्स्ड बाइनरी है। तो इस तरह के वेरियस डेटा टाइप्स हैं कि किस तरीके का डेटा आपको एंटर करवाना है। नाउ कस्टमर आईडी किस तरह का डेटा टाइप होगा इसका? Sir integer. करेक्ट, Integer. तो लेट्स चेक आउट कस्टमर आईडी, इट्स इंटीजर। देन रिक्वायर्ड बाय डेट, इसका डेटा टाइप क्या होगा? Date. Date. करेक्ट, सो डेट है। देन शिपिंग फोन नंबर, इसका क्या डेटा टाइप होगा? Integer. Integer. ये इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो वी विल बी चेंजिंग इट टू इंटीजर, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। नाउ वी विल बी क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। तो नाउ इट इज सेइंग सेटअप प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या होता है?
कि जो भी यूनिक वैल्यू इसमें, तो यहाँ पे यूनिक चीज क्या है, ऑर्डर की आईडी। अगर हम ऑर्डर की टेबल की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी की ऑर्डर आईडी होगी, बिकॉज सपोज आप कोई कोई अपना शिपमेंट ट्रैक करना होता तो एक शिपमेंट आईडी होती है ना, तो दैट इज द यूनिक आईडी। सो वो किसी और को अलॉट नहीं हो सकती। सो हियर विल बी, सो इट इज सेइंग ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, तो हम ऑटोमेटिकली ऐड नहीं करेंगे। नाउ डिफाइन अ प्राइमरी की, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी प्राइमरी की हो गई, हमने फिनिश किया है। नाउ यू कैन सी ऑर्डर्स टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसमें कि ऑर्डर आईडी, डेट, शिपमेंट डेट, कस्टमर आईडी, रिक्वायर्ड बाई एंड फ़ोन नंबर, ये हमारा आ गया। एंड इसमें अब हम डेटा की एंट्री कर सकते हैं। So this is how you are going to create a table. So I hope till here everything was clear. Yes, sir.